So we are going to start successive differentiation, which includes higher order derivatives, nth order derivative of some important functions, and Leibniz theorem. Okay. Excuse me. So what are the higher order derivatives? We have learned the first order derivative, which is called as dy by dx, rate of change. Okay. So what we are getting with dy by dx? We are getting rate of change of y with respect to x. Okay. तो क्या हम एक ही बार इसको रेट ऑफ चेंज को देख सकते हैं? नो, we may be required to see the rate of change again and again of these functions which are already being seen once, like the example of velocity and acceleration. It is rate of change of speed with sorry of distance with respect to time. ठीक है, तो rate of change of distance with respect to time, is it only requirement? No, we also require for our different purpose of analysis the acceleration as well. So what is the acceleration? It is rate of change of velocity with respect to time, or it is rate of change twice derivative of that rate of change of the distance. So in different studies, we require the different order derivatives. They are combinedly called as higher order derivatives. And general representation is what? Fnx. So d by dx of fn minus 1x. Of course, आप क्या करते हो? आपको अगर nth order derivative निकालना है, so what will be your way of proceeding to nth order derivative? You will be finding the first order derivative, which is dy by dx. Then you will find out the second order derivative, which is the dy dash by x. मतलब जो आपने पहले से निकाल चुके हो एक डेरिवेटिव, उसका एक बार और डेरिवेटिव. So d2 by dx square or d by dx of fx. So we all know this because you done this in your school time as well. Second order derivative निकालना. So a quick revision of that part with a few questions. So x is now dy by dx. If the x and y is given in terms of the other variable, what you will do? So you will find out dy by d theta and dx by d theta. ऐसे ही करते थे ना? Okay. It means what? It means if y is a function of theta और आपको उसको x के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो आपको क्या करना है? चेन रूल लगाना होगा. मीनिंग आप पहले dy by d थीटा कर लो और फिर d थीटा by dx कर लो. ओके, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन वाला रूल लग जाता है. ठीक है ना? Either remember this rule or remember this. So here x and y are a function of a third variable theta. So अगर आपको dy by dx करना है, आपको क्या करना होगा? dy by d theta और dx by d theta और फिर उसको डिवाइड करना होगा. Everybody knows this? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, So ma'am. quickly देख लो इसको यहीं पे. dx by d theta. So थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया. यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा सेकेंड टर्म में. फर्स्ट टर्म में डायरेक्टली डिफरेंशिएशन. सो यू हैव a माइनस साइन थीटा प्लस, जब थीटा को किया तो साइन थीटा, और जब थीटा को नहीं किया तो थीटा कॉस थीटा. सो यू हैव माइनस साइन थीटा और थीटा कॉस थीटा. यू गेट a थीटा कॉस थीटा. dy by dx किया, सो यू गेट a, यहाँ पे सिंपल डिफरेंशिएशन, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल. सो a कॉस थीटा माइनस थीटा को किया डिफरेंशिएशन तो कॉस थीटा, और कॉस थीटा को किया तो थीटा साइन थीटा प्लस. So after cancellation you get this. Now dy by dx will be either return this or return this. You get a tan theta. All right.
ना आपको d2y/dx² निकालना है, सेकेंड ऑर्डर निकालना है, और वो उसके निकालने के बाद एक पॉइंट पे उसकी वैल्यू भी निकालनी है। तो यहाँ पर अगर आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो कोई मुश्किल नहीं होगा। d2y/dx² निकाल रहे हैं तो d/dx ऑफ tan थीटा निकाल रहे हैं। अब अगर आपका ये y है और ये x है तो क्या करोगे आप? ठीक है, अब आपका ये न्यू फंक्शन है tan थीटा और आपका x तो यही है, तो आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा ये dy, इसको y नहीं z बोलते हैं, तो dz/d थीटा डिवाइडेड बाई dx/d थीटा, जैसे अभी आपने किया। तो dz/d थीटा कितना हुआ? tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec² थीटा और dx/d थीटा इज a थीटा cos थीटा। सो दोनों को सिंप्लीफाई किया, यू गेट sec³ थीटा। अब क्या होता है कभी कंफ्यूजन में आप sec² और नीचे नीचे लिखा है cos थीटा ना, तो आप इसको कैंसिल कर देते हो। ऐसा बिल्कुल मत करना, सेम फंक्शन विल गेट कैंसिल आउट, सो दिस विल बिकम cos, इधर नीचे ले जाओगे तो cos³, ऊपर ले जाओगे तो sec³ और अपॉन a थीटा। थीटा की वैल्यू रखी π/3, so you get the answer. All right, a very basic and simple question for revising your second order derivative, first order derivative, function of function, and how to find out the value of derivative at a point. That is the last thing. ठीक है? Okay. अब sometimes this type of questions also you must have done that if y is given in terms of some function of x, you have to prove some identity, है ना? दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी। सो आपको ये आइडेंटिटी को प्रूव करना इज इक्वल टू 0 आ रही है, तो आप इसके LHS में जो वैल्यूज दी हुई है उनको रखते हो और फिर देखते हो कि वेदर यू आर गेटिंग इक्वल टू RHS और नॉट। तो LHS के लिए आपको क्या करना है? आपको d2y/dx² निकालना है, आपको dy/dx निकालना है और आपको y। ठीक है, सो या तो आप इनकी इंडिविजुअल वैल्यू निकाल के इसमें रख दो या फिर उस प्रोसेस में ही आपको ये अपने आप मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या हो रहा है। dy/dx किया आपने, तो आपने क्या किया? dy/dx ऑफ sin x। अब फंक्शन ऑफ फंक्शन को कैसे निकालते हैं? तो पहले बाहर वाला हुआ cos sin x और फिर sin x का cos x। एवरीबडी क्लियर अबाउट द डिफरेंशिएशन? नहीं है तो आज अपने डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेना, 11th-12th की बुक खोलना जहाँ पे सारे फॉर्मूलेज दिए हुए हैं और इंटीग्रेशंस के भी। ओके, सो दिस इज वेरी बेसिक स्टेप। ओके, उसके बाद इसको सेकेंड टाइम करना है, तो सेकेंड टाइम करना है मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ पे क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। तो एक बार आपने कॉस को किया तो माइनस साइन ऑफ साइन एक्स और फिर साइन का हो गया कॉस एक्स और कॉस एक्स ऑलरेडी है तो cos² x, और फिर आपने कॉस साइन एक्स को ऐसे ही रखा बट कॉस एक्स का किया तो माइनस साइन एक्स, सो बोथ आर इन टर्म्स ऑफ द माइनस। ओके, अब देखो, अब इसी इक्वेशन को देखो जो आपको प्रूव करना है, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बट एनीवे अभी हम कुछ नहीं करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम साइन ऑफ साइन एक्स क्या है? y है, तो आप इसको माइनस y cos² x, सो ये आपका y cos² x हो गया, और आपको d2y/dx² प्लस y cos² x तो करना ही है, सो इसको इस साइड ले जाओ, दिस विल बिकम प्लस का y cos² x। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये है आपका cos sin x और sin x, पर हमें क्या रिक्वायर्ड है? हमें रिक्वायर्ड है, अगर इसको dy/dx बनाना है तो हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पर cos x मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी टर्म में cos x मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। तो cos x अगर मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया तो क्या बन जाएगा? ये 10
ओके, और साथ में ये cos x के साथ ये cos sin x मिलके क्या बन जाएगा, dy by dx। माइनस साइन के साथ इस साइड ले जाओगे तो प्लस के साथ, तो d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू ही निकालने से और उसको सिंप्लीफाई करने से ही आपकी आइडेंटिटी आ गई। क्लियर? Yes, ma'am. और देखो, so you're given sine in terms of a variable t, y in terms of a variable t, and you have to prove something in dy by dx and d2y by dx square। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है वैसे ये क्वेश्चन होगा, that dy by dx निकालो which is dy by dt divided by dx by dt, और फिर जो वैल्यू आई उसको फिर से d by dt divided by dx by dt, so you will get d2y by dx square। तो कैसे निकाला इसमें देखते हैं। और आई विल सजेस्ट आप अपना कॉपी पेन लेके बैठे हो तो अपना भी क्विकली कैलकुलेशन करते रहो, ठीक है, साथ साथ में। ये क्लास के बाद में जरूर इसकी प्रैक्टिस कर लेना। सो डी एक्स बाई डी टी की आपने कॉस टी आया, डी वाई बाई डी टी की आपने पी कॉस टी आया, पी कॉस पी टी, सो पी कॉस पी टी। ओके, नाउ दिस बिकम्स अ आपका पी बाई क्यू वाला रूल लगेगा, ठीक है। अगर आप इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे और उसके बाद उसको डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड करोगे तो इसमें तो आपका क्वोशिएंट रूल लगेगा और साथ ही साथ में आपको डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड करना था तो आपको कॉस टी से डिवाइड करना है। तो ये कॉस टी से डिवाइड किया और यहाँ पर पी कॉस पी टी अपॉन कॉस टी का डिफ्रेंसिएशन किया, सो कॉस टी पी स्क्वायर साइन पी टी माइनस कॉस टी, ऑल राइट, और प्लस क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी आता है तो माइनस माइनस प्लस कॉस टी का हो गया साइन टी और ये पी कॉस पी टी डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर और कॉस मिलके बन गए कॉस क्यूब। अब आपका जो एक्सप्रेशन है उसको देखो, यू आर गेटिंग डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और साथ में इतनी बड़ी टर्म आ रही है, इतनी बड़ी टर्म के साथ साथ आपको वन माइनस एक्स स्क्वायर करना है, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज वन माइनस साइन स्क्वायर टी विल बिकम कॉस स्क्वायर टी। तो कॉस स्क्वायर टी जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप, ये कॉस स्क्वायर टी तो कैंसिल कर देगा ना, ठीक है, ये कॉस स्क्वायर टी तो कैंसिल हो जाएगा और फिर यहां पर आपको ये कॉस टी जो नीचे यहां पर आ रहा है इसको, ये कॉस टी और कॉस टी कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी विल बिकम वाई और दिस विल बिकम कॉस पी टी अपॉन कॉस टी, क्या बन जाएगा आपका पी कॉस पी टी अपॉन टी। देखो सब कुछ यहाँ से क्लियर दिख रहा है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये है आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ऑल राइट। अभी यहीं पे देखो, फिर सॉल्व तो हम कर ही लेंगे। अब क्या करना है आपको, वन माइनस कॉस स्क्वायर करना है, ठीक है, सॉरी वन माइनस साइन स्क्वायर करना है, वन माइनस एक्स स्क्वायर करना है ना इसमें साथ में। तो अगर आपने यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर किया, वन माइनस एक्स स्क्वायर कितना बन गया वन माइनस एक्स स्क्वायर कितना बन गया, एक्स कितना है तो एक्स को देखो जा करके, एक्स इज साइन टी, ऑलराइट। तो ये कितना बन गया, वन माइनस साइन स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर, एवरीबडी इज विथ मी। तो ये बन गया वन माइनस साइन स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, तो कॉस स्क्वायर टी से ये कॉस स्क्वायर टी तो कैंसिल हो गया ना, अब क्या बचा ये कॉस टी, तो आपके पास है माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो गया, ऑल राइट।
सो माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी कितना है एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स, तो ये कितना बन गया आपका माइनस पी, सॉरी पी पी है ना, सो पी तो वाई है आपका, पी इज वाई। तो ये क्या बन गया माइनस पी स्क्वायर वाई, माइनस पी स्क्वायर वाई इस साइड जाके क्या बन गया पी स्क्वायर वाई प्लस का। अब जो बची हुई टर्म है उसको देखो, तो जो बची हुई टर्म है वो क्या है आपका p cos पी टी साइन टी अपॉन कॉस टी। तो p cos टी अपॉन कॉस टी कितना है ये है dy बाई डी एक्स, और साथ में साइन टी कितना है x, तो ये क्या बन गया x dy बाई डी एक्स, और अगर वो इज इक्वल्स टू के इस साइड ले जाओगे तो विल बिकम माइनस। दिस इज हाउ सच क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। वही किया है इसमें, आराम से आप अपने एंड पे देख सकते हो। दिस इज ऑल्सो सच वन क्वेश्चन, you can see it is solved here, and then there is a change of independent variable, function of function. The whole of this 8.1 is with you to solve, ठीक है। These are